Hello students, today I am discussing isoquinoline. Isoquinoline is also a fused heterocyclic compound like quinoline. In the quinoline, the two rings are, first one is benzene and another one is pyridine. In isoquinoline, this is also made up by two rings. First one is benzene ring and second one is pyridine ring. But the only difference is this one. In quinoline, nitrogen atom is present at position number 1, and in isoquinoline, nitrogen atom is present at position number 2. Again, the numbering pattern start from this carbon atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. अब the synthesis of isoquinoline and most important synthetic method is Bichler-Naparsky synthesis. ठीक है. कैसे होती है आपकी? दो आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स आर फेनिल एथिलैमीन दिख रहा है आपको. दिस इज C6H5 रिंग, फेनिल रिंग, एंड CS2 एथिल and amine NH2. So this one is phenyl ethyl amine. When this compound react with formyl chloride, what is formyl chloride? HCOCl. This is formyl chloride. In basic condition, it gives dihydroisoquinoline, and with the reaction of phosphorus pentaoxide P2O5. P2O5 is a dehydrating agent. Okay, so phenylethylamine react with formyl chloride in basic condition in the presence of P2O5 phosphorus pentaoxide. It gives dihydroisoquinoline. ठीक है. And finally, when we reduce oxidize this compound with palladium or heated with palladium, hydrogen evolve from here and this compound converted into isoquinoline. ठीक है. The reaction कैसे होती है देखो. This is phenyl ethyl amine and then formyl chloride HCOCl. कैसे? Cl negative removes from here. Cl negative, chlorine is more electronegative than carbon. ठीक. तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा? पुल करेगा. तो Cl नेगेटिव रिमूव्स फ्रॉम हेयर एंड H पॉजिटिव रिमूव्स फ्रॉम हेयर. ठीक. तो HCl, H पॉजिटिव फ्रॉम हेयर and Cl negative from here. HCl removed from the condensation process, and this carbon and this nitrogen attached with each other. ठीक है. They make a covalent bond between nitrogen and carbon. ठीक. तो this is phenyl, again CH2, CS2. Now this NH2 किस में कन्वर्ट हो गया? NH में, and there is a linkage between nitrogen and this carbon atom. So nitrogen carbon double bond O, single bond H. ठीक है. Now this is a tautomer of this compound, means hydrogen moves from nitrogen to oxygen. So 1, 2, 3 hydrogen moves from nitrogen to oxygen, and double bond shifted from कार्बन ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन कार्बन. ठीक. क्या हो गया आपका? अगेन दिस इज फेनिल ग्रुप. CS2 कैसा सेम रहेगा? CS2 रिमेन इन द original position, and this nitrogen converted into N because hydrogen moves from nitrogen to oxygen. ठीक है. And there is a double bond between carbon and nitrogen, and this oxygen converted into OH, single bond OH, and this hydrogen is here. ठीक है. Now P2O5, this is a P2O5 is a dehydrating agent. It means it removes the water molecule. How? OH from here and H means OH negative from here and H positive from here. ठीक. क्या हो गया फिर आपका? H2O रिमूव हो गया एंड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया आपका? दिस CS2 N डबल बॉन्ड CH, और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. दिस कंपाउंड इज 1, 2, 3, 4. ठीक है. तो 3, 4 में 2 हाइड्रोजन है. सो दिस वन इज 3, 4 डाईहाइड्रोआइसोक्विनोलिन. एंड फाइनली व्हेन वी हीटेड दिस कंपाउंड विथ पैलेडियम, hydrogen molecule removes from here and this compound become aromatized and converted into isoquinoline. So this is synthetic method for the synthesis of isoquinoline from phenylethylamine and formyl chloride. Very easy method. Chlorine removes from here, H positive from here, HCl from here. There is a linkage between this carbon and this nitrogen. Then the tautomerism 1, 2, 3 hydrogen moves from nitrogen to oxygen,
and this compound converted into enol form, and finally in the presence of P2O5 it is a dehydrating agent. It removes a water molecule. How? OH from here, H positive from here, so water molecule from here and here, and there is a bond formation between this carbon and this carbon. So this compound 3,4-dihydroisoquinoline is formed, and finally when we heated this compound with palladium, hydrogen molecule removes from here and this compound converted into aromatic compound, and which compound? Isoquinoline. ठीक है. Second method is pictet Spengater synthesis. ठीक है. क्या होता है? अगेन दिस इज सिमिलर टू स्टार्टिंग मटेरियल सेम है. विच वन? फेनिल एथिलेमीन. दिख रहा है फेनिल एथिलेमीन. हमने बिस्लेन लैप्लेस की रिएक्शन में भी वही यूज़ किया था, इसमें भी वही होता है फेनिल एथिलेमीन. व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विथ एल्डिहाइड RCHO, दिस इज RCHO इन एसिडिक मीडियम. क्या हुआ? अगेन देखो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम हेयर. दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन प्रोसेस. O from here and H2 from here, and there is a nitrogen carbon double bond formation. ठीक है. तो नाइट्रोजन कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम हेयर. क्या हो गया? ये फेनिल CS2 देखो ये N, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रोटोनेट भी हो जाता है. तो यहाँ पर को क्या दिखा रखा है? देखो सॉरी, 1H इज इनफ. 1 2 3 4. ठीक है. तो क्या हो गया? NH पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड CHR. तो कुछ नहीं था, ये ऑक्सीजन, और पहले तो ये निकल गया. देखो समझ लो, ये वाटर निकल गया. तो क्या हुआ? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और जैसा था ऐसा ही रहा. R ऐसा ही रहा, CH ऐसा ही रहा, सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया. एंड फाइनली H पॉजिटिव क्या करता है? लोन पेयर को प्रोटोनेट हो जाता है. तो किस में कन्वर्ट हो गया? NH पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. नाउ अगेन दिस इज सिमिलर कंपाउंड. बेंजीन रिंग CS2 NH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CHR. तो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? इट पुल्स लोन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक. तो ये ऐसे बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये इस तरह को क्लीव हो जाएगा. तो देयर इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. तो क्या हो गया? यहाँ से यह बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा. बाकी ये कैसा होगा? यदि ये ऐसे क्लीव होगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव. ठीक. तो क्या हो गया आपका? देखो ये डबल बॉन्ड सेम रहे, और क्या हुआ आपका? जो ये डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, एंड यहाँ पर को कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. फाइनली क्या होगा? यहाँ से इसको एरोमेटाइज होना है, तो H पॉजिटिव रिमूव होगा. तो H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया. एंड फाइनली ये वही कौन सा कंपाउंड है? उसका रिड्यूस फॉर्म है. तो इसको किसके साथ गर्म करते हैं? पैलेडियम चारकोल के साथ गर्म करते हैं. तो जो ये रिंग है वो भी कैसी हो जाती है? एरोमेटाइज हो जाती है. एंड दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू 1-एल्किल आइसोक्यूनिलीन. सो ये दो मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं? आपका आइसोक्यूनिलीन को सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज कैसा होता है? आइसोक्यूनिलीन इज अ कलरलेस लिक्विड है. बॉइलिंग पॉइंट 516 केल्विन है. दिस इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. देखो सारे कार्बन्स कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज हैं, साइक्लिक आपको दिख ही रहा होगा. और जो लोन पेयर है आपका, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये आपका रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज दिस लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू पाई फ्रेमवर्क. ठीक है. अगेन जैसे कि हम किसके केस में पढ़ते आए हैं? पिरिडीन के केस में पढ़ते आए हैं, उसी तरीके का इसमें भी होता है. दिस लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू द पाई फ्रेमवर्क. सो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. सो ओनली 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आइसोक्यूनिलीन. ठीक है. नाउ दीज आर रिजोनेटिंग फॉर्म्स, जैसे हमने क्यूनिलीन में किया था. देखो ये आपका आइसोक्यूनिलीन है. फर्स्ट बनाते समय क्या करो? ये डबल है, ये सिंगल है, तो उसको क्या करो? बेंजीन वाले के रिंग चेंज कर दो. जो डबल है उसको सिंगल कर दो, सिंगल है उसको डबल कर दो. फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा. सेकेंड बनाते समय पिरिडीन के चेंज कर दो. पिरिडीन में जो डबल है उसको सिंगल कर दो, जो सिंगल है उसको डबल कर दो. तो ये नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया. नाउ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल किया, तो नाइट्रोजन नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया. अब तुम्हें पता ही है रिजोनेट कैसे करना है. 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक. प्लस कहाँ से? 1 से कहाँ पहुँचेगा? 3 में. एंड डबल बॉन्ड शिफ्टेड फ्रॉम 2 3 टू 1 2 यहाँ पर आ जाएगा. फिर 1 2 3 अगेन प्लस कहाँ जाएगा? 3 में. बॉन्ड कहाँ जाएगा? पीछे दिख रहा है ये, यहाँ आ गया आपका 3 पे, और ये पीछे हो गया. फिर 1 2 3 प्लस कहाँ पर दिखाई देगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 3 में. बॉन्ड पीछे आ जाएगा. तो ये फिर अगेन 1 2 3. तो आपके ये डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं किसके? आइसोक्यूनिलीन के. सिमिलर हैं जैसे कि हमने किसके केस में पढ़े थे? क्यूनिलीन के केस में हमने पढ़े थे. नाउ केमिकल प्रॉपर्टी जो आपका ये है आपका क्यूनिलीन है, बिकॉज इन आइसोक्यूनिलीन नाइट्रोजन हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो
ये भी कैसा करेक्टर शो करता है, बेसिक करेक्टर करता है लाइक क्यूनेलिन, बट दिस इज अ मॉडरेट बेसिक कंपाउंड है, ना बहुत हाईली बेसिक है ना बहुत ही लो बेसिक है, मॉडरेट बेसिक कंपाउंड है. एंड सम रिएक्शंस विच प्रूव दैट आइसोक्यूनेलिन इज बेसिक इन नेचर. दिस इज आइसोक्यूनेलिन. व्हेन दिस आइसोक्यूनेलिन रिएक्ट विद एसिड, दिस इज अ बेस एसिड, इट मेक्स अ सॉल्ट. ठीक है, क्या नाम है, आइसोक्यूनेलिन हाइड्रोक्लोराइड. तो ये इंडिकेट करता है दिस इज अ बेस, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है. ठीक है, तो क्या हुआ आपका, देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम, H पॉजिटिव फ्रॉम HCl, इट अटैक्स एट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एट नाइट्रोजन एटम. क्या बनाएगा आपका NH, एंड नाइट्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक, दिस इज आइसोक्यूनेलिन हाइड्रोजन क्लोराइड. सेकेंड, व्हेन दिस रिएक्ट विथ मेथिल आयोडाइड, अगेन नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, N मेथिल, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, तो N मेथिल आइसोक्यूनिलीनियम आइन बनता है. सो दीज टू रिएक्शंस प्रूव दैट आइसोक्यूनिलीन इज बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक क्यूनिलीन. कौन कौन सी पोजीशन में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 5 and 8. तो आइसोक्यूनिलीन में भी जो अटैकिंग साइट्स हैं यही होता है, बेंजीन में होता है. उसका कारण हम पहले ही बात कर चुके हैं. बेंजीन में क्यों आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, बिकॉज इन जो दूसरी रिंग है दैट इज पिरिडीन रिंग, इट हैज़ अ नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो नाइट्रोजन क्या करता है, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है. तो जो ये रिंग बचती है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाती है. एंड दिस अनदर रिंग, बिकॉज दिस इज मेड अप बाई ऑल कार्बन एटम्स, सो दिस रिंग इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव. ठीक, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम. तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पर होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी. इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पर अटैक करते हैं, इस रिंग पर अटैक नहीं करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है उस पर नहीं करते. और मोस्टली जो बनता है वो क्या बनता है आपका, 5 and 8. 5 मीन्स आपको पहले बता चुके हैं 1 2 3 4 5. यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये आपके बनते हैं. बट क्या होता है आपका जो 5 प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट होता है, जो 8 प्रोडक्ट है वो उसका जो क्या होता है, यील्ड होती है कम होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज आइसोक्यूनेलिन. व्हेन आइसोक्यूनेलिन रिएक्ट विद, दिस इज नाइट्रेशन प्रोसेस ऑफ आइसोक्यूनेलिन. इट मीन्स आइसोक्यूनेलिन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो नाइट्रेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड एट पोजिशन नंबर 5. सो दिस इज 5 नाइट्रो आइसोक्यूनेलिन एंड दिस इज 5 नाइट्रो आइसोक्यूनेलिन. ठीक है, तो either at position number 5 or at position number 8, but this one is main product and this one is minor product. This one is major and this one is minor. तो 5 nitro isoquinoline and 8 nitro isoquinolines are product. ठीक है, likewise this is sulfonation process when isoquinoline react with oleum. What is oleum? The mixture of sulfuric acid and sulfur trioxide, H2SO4 plus SO3, it means H2S2O7. This is known as oleum at 455 डिग्री केल्विन टेम्परेचर. तो अगेन क्या होगा, सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, SO3H. तो कौन सी पोजीशन पर, एट पोजीशन नंबर 5 एट पोजीशन नंबर 8. तो क्या बनेगा, जब 5 पर अटैच होगा तो दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, एंड जब 8 पर अटैच होता है तो दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट. ठीक है, तो दिस वन इज मेन प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट. इट्स नेम इज आइसोक्यूनिलीन 5 सल्फोनिक एसिड एंड इट्स नेम इज आइसोक्यूनिलीन 8 सल्फोनिक एसिड. ठीक है, ये 5 सल्फोनिक एसिड है एंड दिस वन इज 8 सल्फोनिक एसिड. बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ब्रोमिनेशन इन CCl4, ठीक है, इट गिव्स 4 ब्रोमो आइसोक्यूनिलीन. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि 5-8 पर अटैक होना है, बट इन द केस ऑफ ब्रोमिनेशन क्या होता है आपका जो अटैक होता है 1 2 3 4, ब्रोमीन अटैक्स एट पोजीशन नंबर 4 इन पिरिडीन रिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट रिडक्शन. तो जो रिडक्शन होता है, जो पिरिडीन रिंग है, पिरिडीन रिंग इन आइसोक्यूनिलीन इज रिड्यूस्ड मोर इजीली. ठीक है, ये वाला इजीली रिड्यूस होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग. फॉर एग्जाम्पल ये प्रूव होता है इन रिएक्शन से. ठीक है, कैसे, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका डाईहाइड्रो, कौन सी रिंग हो रही रिड्यूस, दिस वन. ठीक है, और कौन सा बनता है आपका 1,2 डाईहाइड्रो, क्या बनता है आपका 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्यूनिलीन बनता है. एंड व्हेन वी यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट एज टिन एंड HCl, देन द मेन प्रोडक्ट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनिलीन. ठीक है, तो रिडक्शन करने पर कौन सी रिंग रिड्यूस होती है आपकी, पिरिडीन वाली रिंग रिड्यूस होती है, बेंजीन वाली रिंग रिड्यूस नहीं होती है.
और क्या बनाती है आपकी 1,2 प्रोडक्ट बनता है सोडियम और लिक्विड अमोनिया से, और 1,2,3,4 टेट्रा हाइड्रो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है टिन और HCl से। ठीक है, काम तुम्हारा ये है कि तुमने क्या करना है, बेचलर-नेपलस की जो रिएक्शन है उसके बारे में, उसकी सिंथेसिस आपने लिखनी है। ठीक है, ये आपका वर्क है। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आइसोक्यूनिलीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन नंबर 1, तो एट व्हाट पॉइंट, दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अटैक करना है, तो दिस इज आइसोक्यूनिलीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन आइसोक्यूनिलीन रिएक्ट विथ NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, देन न्यूक्लियोफाइल क्या है, Na क्या होता है पॉजिटिव एंड NH2 इज नेगेटिव, सो न्यूक्लियोफाइल इज NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव इंट्रोड्यूस एट पोजीशन नंबर 1, सो क्या बन जाएगा आपका 1 एमिनो आइसोक्यूनिलीन, दिस वन इज 1 एमिनो आइसोक्यूनिलीन। ठीक है, लाइकवाइज किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसमें क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है C2H5, तो ये कौन सी पोजीशन पर आ जाता है आपका 1 पोजीशन पर, इट मीन्स 1 एथिल आइसोक्यूनिलीन बन रहा है। ठीक है, एंड फाइनली ऑक्सीडेशन, व्हेन एल्कलाइन के MnO4 में इसका ऑक्सीडेशन करता है तो दोनों रिंग रप्चर होती है, एक बार ये रिंग रप्चर हो जाएगी, एक बार ये रिंग रप्चर हो जाएगी। तो पहले जब ये वाली रिंग रप्चर होगी तो क्या होगा, ये एसएच बनी रहेगी, तो COH ग्रुप इन पोजीशंस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका पिरिडीन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहा है ना, जहाँ से लिंक होता है वहीं पर COH ग्रुप आते हैं, तो यहाँ पर लिंक है और यहाँ पर लिंक है, तो इन पोजीशंस में यहाँ पर यदि ये वाली रप्चर हो रही है तो इन पोजीशन में COH आ जाएंगे, और यदि ये वाली रप्चर हो रही होगी तो इन पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट केस हम मान रहे हैं कि ये वाली बेंजीन रिंग रप्चर हो रही है तो पिरिडीन बनी रहेगी और इन पोजीशंस पर COH आ जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज पिरिडीन 3,4 कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड कंडीशन क्या हो रहा है आपका, पिरिडीन रिंग रप्चर हो रही है, बेंजीन बनी हुई है, तो बेंजीन बनी रहेगी और इन दोनों पोजीशंस पे क्या आ जाएगा COH, तो COH दिस इज थैलिक एसिड। ठीक है, सो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है पूरा कौन सा चैप्टर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है।